અમારા માટુંગાના બિપિનભાઈ અને પંકજભાઈ એટલે રામ લક્ષ્મણની જોડી છે અને જૈન સંઘ અને શાસનના અનેકવિધ કામો આ બંને ભાઈની જોડી, બંધુની જોડી ખૂબ અદ્ભુત રીતે કાર્ય કરી રહી છે. એવા શ્રી પંકજભાઈનું બહુમાન જેવો આ ઉદ્ઘાટનના સમારોહના મુખ્ય ઉદ્ઘાટક તરીકેનો એમને લાભ મળ્યો છે. આવો બહુ સરસ કમ્પ્લીટ લાભાર્થી પણ જ્ઞાન ભંડારના ખૂબ ખૂબ હૃદયથી અનુમોદના સાહેબ. ધન્યવાદ. આપણે પધારો. સિતારા સહુ આજ જળહળ શ્રાવિકાબેનને પણ ત્યાં આવી જજો આગળ, ત્યાંથી કરશે. સિતારા સહુ આજ જળહળ શ્રુષ ધર્મની આજે પતાકા થઈ, શ્રુષ ધર્મની આજે પતાકા થઈ. બિછાવી છે સરગમ સાથે સુરોએ, 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 બિછાવી છે સરગમ સાથે સુરોએ. પ્રભુની પતાકા ઊંચે જઈ રહી છે, પ્રભુની પતાકા ઊંચે જઈ રહી છે. સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પગ, સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પદ, સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પદ, સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પદ. પસાની સાની ધણી પદ પગ પગ, સાની સાની ધણી પદ પગ, સાની સાની ધણી પદ પગ, પસાની સાની ધણી પદ પગ. સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પદ, સાગર સાગ પગ પગણી ગણી પદ પદ. ગગનસા 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 ગગનસા. જે ઘડીએ મારો નાથ પધારે, જે ઘડીએ મારો નાથ પધારે. ધન્ય ઘડી ધન્ય દિવસ આજે, ધન્ય ઘડી ધન્ય દિવસ આજે, પ્રભુ તારા નામની જપ જપ માલા, પ્રભુ તારા નામની જપ જપ માલા, પ્રભુ તારા નામની જપ જપ માલા, પ્રભુ તારા નામની જપ જપ માલા. જય 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 જય. ઓ પ્રભુની પતાકા ઊંચે જઈ રહી છે. પ્રભુની પતાકા જય જય જય. બકુલભાઈ ઝવેરી પધારો. જૈન સંઘનું એક અનમોલ રત્ન શ્રી બકુલભાઈ જીવનચંદભાઈ ઝવેરી આજે રાત્રે આપણી સાથે બધા, જેમણે 55 તો એમ્બેલ શાળા પોતાના જીવનમાં વસાવેલી છે. છેલ્લા 45 વર્ષથી દર સોમવારે નિત્ય એમ્બેલ કરે છે. હે મારા વીરનું શાસન ગાજે, મારા વીરનું શાસન ગાજે, મારા વીરનું શાસન ગાજે, મારા વીરનું શાસન ગાજે. ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, આ શાસન રે ગાજે. ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, આ શાસન ગાજે. એવા દુશ્મન કાળને કાળ રાતમાં, એવા દુશ્મન કાળને કાળ રાતમાં જય જયકાર ગાજે. મહાવીર શાસન ગાજે, મહાવીર શાસન ગાજે, મારા વીર શાસન ગાજે, મહાવીર શાસન ગાજે. હો ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, ગાજે રે ગાજે, આ શાસન ગાજે. ગાજે રે ગાજે,
તબલા બેસ. બહાર ગામથી પધારેલા જેટલા જ્ઞાન ભંડારના સંચાલકો છે તેઓ પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને અત્રે આવ્યા છે, તો તેઓ શ્રીનું પણ બહુમાન સંદીપભાઈ બધા જ પોતાની એમની જગ્યા પર જઈને કરશે. આવો જ્ઞાન મંડળ. ચાલો. હલો. ગામે ગામથી જ્ઞાન મંડળના સંચાલકો, વિદ્વવર્યો, સ્કોલરો આ પ્રસંગે અહીંયા આપણો અમૂલ્ય સમય કાઢીને ચાલુ દિવસે પણ અહીંયા પધાર્યા છે. એમની વિદ્વત્તાનો પરિચય પણ આપણને હમણાં થોડીક વારમાં મળશે, પણ એક ઔચિત્ય રૂપે એમનું એક બહુમાન આપણે એમની જગ્યા ઉપર જ જઈને કરવું છે. ફક્ત 2 જ મિનિટનો સમય લઈશ અને બધાનું બહુમાન કરીશ. પ્રથમ પહેલા સમરીએ રે ગૌતમ સ્વામી ગણધરા. પ્રથમ પહેલા સમરીએ રે ગૌતમ સ્વામી ગણધરા. રિદ્ધિ સિદ્ધિ નાગે વાન મારા દેવતા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ નાગે વાન મારા દેવતા. મહેર કરો ને મહારાજ રે, મહેર કરો ને મહારાજ રે. આપેને કેવળ આપ્યું અજબ ગજબ ના દાતાર જો. દીક્ષા આપે કેવળ આપ્યું અજબ ગજબ ના દાતાર છો. અજ્ઞાનને અહંકારથી લોકો ડૂબે છે, અજ્ઞાનને અહંકારથી લોકો ડૂબે છે. તેને લઈને તમે તરી ગયા, તેને લઈને તમે તરી ગયા. પ્રથમ પહેલા સમરીએ રે ગૌતમ સ્વામી ગણધરા. રિદ્ધિ સિદ્ધિ નાગે વાન મારા દેવતા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના આગે વાન મારા દેવતા. મહેર કરો ને મહારાજ રે, મહેર કરો ને મહારાજ. અને હવે પછી આ જે ખેસ બધાને પહેરાવી રહ્યા છીએ ને, આપ જોજો, આમ નોર્મલી જય જીનેન્દ્રને એવું લખેલું હોય છે, આની ઉપર ઓમ રીમ નમો નાણસ્થ લખેલું છે. એટલે આખો પ્રસંગ ચાલે ને ત્યાં સુધી આ ખેસ પહેરી રાખવાનો છે. જ્યાં પણ આ ફોટોને વિડીયો ફરશે ને તો બધાને લાગવું જોઈએ કે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રસંગમાં આપણે ગયા છીએ અને આપણી એક પ્રસંગની ગરિમા છે. બધા પહેરી રાખજો, બધાને પહેરાવશું આપણે, બધા પહેરી રાખજો આ ખેસ, ફોટા સારા આવશે. અને પાંચમા આરામાં જેમ હમણાં જ કહ્યું, જીન બિંબ જીન આગમ ભવ્યણકુ આધાર. પ્રતથી બોધ થાય છે અને પ્રતિમાથી બોધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખેસ બધાએ પહેરી રાખવાના છે. બહુ જ અદ્ભુત વાત કરી છે ખેસ મુકેશભાઈ. બધા પહેરી લેજો મુકેશભાઈ, ખેસ પહેરીને. કે પ્રતથી બોધ થાય છે અને પ્રતિમાથી બોધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જીન બિંબ અને જીન આગમ એ જ આપણો આધાર છે.
અત્યારે કેવળ જ્ઞાનીઓની અને તીર્થંકર પરમાત્માઓની આપણને ખોટ છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને આથમી ગયા છે. તો દીપક સ્વરૂપે આ શ્રુત જ્ઞાન એ આપણા માટે એટલું અદ્ભુત, મહામંગળકારી અને એટલું બધું કલ્યાણકારી છે. સાચું કે જો મારી પાસે 1 રૂપિયો હોય અને સંદીપભાઈ પાસે 1 રૂપિયો હોય, મારો રૂપિયો હું સંદીપભાઈને આપું અને સંદીપભાઈ એમનો રૂપિયો મને આપે, તો બેયની પાસે કેટલા બચે? પણ મારી પાસે એક શ્લોક છે અને એમની પાસે પણ એક શ્લોક છે. આજે લોક સંપર્ક વધ્યો, આપણો શ્લોક સંપર્ક ઘટ્યો. મારો એક શ્લોક હું સંદીપભાઈને આપું ને સંદીપભાઈ એમનો શ્લોક મને આપે, તો બેયની પાસે કેટલા રહેશે? 2 શ્લોક થશે. રૂપિયો 1 રહ્યો અને શ્લોક 2 થયા. એ જ બતાવે છે કે ધન કરતાં જ્ઞાનની ઘણી બધી મોટી કિંમત છે. અને એ જ્ઞાન આપણને અનંત અનંત અજ્ઞાની 1 કરોડ પૂર્વ વર્ષ સુધી કર્મ ખપાવે. 1 કરોડ પૂર્વ એટલે 70,560 અબજ, 70,560 બિલિયન ઇન્ટુ 1 કરોડ. એટલા વર્ષ સુધી કર્મ કરે ને જે કર્મ ન ખપે ને એ જ્ઞાની માણસ એક શ્વાસોશ્વાસમાં ખપાવે. આમ શ્વાસ લીધેનો મૂક્યો એટલી વારમાં ઓલાની આટલી મહેનત અને આને ખાલી એટલી જ્ઞાનની કિંમત છે. એ જ્ઞાનના આ બહુમાનનો પ્રસંગ, આવા પ્રસંગો બહુ જ્વલ્લે જ થતા હોય છે. અને હિમાલય પર સંખ્યા કદાચ ઓછી હોય ને તો હિમાલયની કિંમત ઘટી ન જાય કંઈ, ને ચોપાટી પર બહુ સંખ્યા વધી જાય તો ચોપાટીની બહુ વધી ન જાય. એમ આવા પ્રસંગોમાં કદાચ સિલેક્ટેડ લોકો હોય, ભલે ઓછા લોકો હોય, પણ એ લોકો આ શ્રુતને ખરેખર સમજનારા, એની આરાધના કરનારા, સાધના કરનારા છે. देव हरिहंस परमात्मा को जो आत्मस्थ था, गणधर भगवंतों को जो हृदयस्थ था, उसके बाद आचार्य भगवंतों को या पूर्वाचार्य को जो कंठस्थ था, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज के सामने वो पवनस्थ था. हवा में एक लींबू उछालो, नीचे आए तो 7 श्लोकों का उनको क्षयोपशम हो जाता था, नए पुराने नहीं. उसके बाद देवर जी श्रमण गणी ने उसे ग्रंथस्थ करवाया. आज का जो जमाना है वो तर्कस्थ का है कि हर बात तर्क से की जाती है. ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों. अगर हमारे पैदा हुए बच्चों को भी पूछो तो इसी भाषा में बात करेंगे. तो आज तर्कस्थ का जमाना है. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो मुझे लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी और ओल्ड वैल्यूज का अगर हम समन्वय करें तो आज स्कैनस्थ, मतलब कि स्कैन के अंदर इसको स्टोर किया जाए तो हजारों वर्ष तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं. एक बात मैं बीच में कह दूं, 100 प्रोफेसरों की तुलना में एक माता आती है. एक माता, 100 प्रोफेसर एक बाजू रख दो, एक माता रख दो. 100 माता की तुलना में एक अपने पाठशाला की शिक्षक या शिक्षिका आते हैं. 100 शिक्षकों के बराबर हमारे एक पंडित वर्य आते हैं. 100 पंडित वर्य के बराबर हमारे एक चारित्रग्रस्त महामुनि आते हैं. लेकिन 100 महामुनि के बराबर एक ग्रंथ का पद होता है, वचन होता है, जिसे आगम वचन कहते हैं. उस आगम वचन की कितनी कीमत है मैं आज आपको बता दूं कि ये कात्रज तीर्थ दर्शन का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है. ये महापुरुष चारित्र का प्रतीक है. मुझे रास्ते में संदीप भाई ने बताया कि कुछ महीनों पहले परम पूज्य आचार्य भगवंत हस्त सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने उन्हें बताया कि भाई ऐसा कुछ करने लगे, यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है, करीब 50-60 हजार पुस्तकें हैं. एक आचार्य भगवंत और एक श्रावक अगर मिल जाए तो सारी दुनिया को हिलाने के लिए सक्षम है. आज जो साइलेंटली काम पूज्य आचार्य भगवंत ने किया है और हमारे संदीप भाई की जोड़ी ने किया है, तो अगर ये एग्जाम्पल हम सारे हिंदुस्तान के जिन शासन में रख ले तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. और लास्ट 2 दायके या 3 दायके से पूज्य गुरु भगवंत जो ज्ञान का यज्ञ लेके बैठे हैं, उस ज्ञान के यज्ञ की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है. और पूज्य गुरु भगवंत ने यहाँ पे पूना के अंदर ये अद्भुत ज्ञान का यज्ञ चला है. अगर उसके अंदर हमारे 1-2 बिंदु भी पड़ जाए तो मैं मानता हूँ
कि आने वाले 18,500 वर्ष के लिए एक ज्ञान का यज्ञ एक ज्ञान की मिसाल बेनमून होकर जलेगी। હું એમને વિનંતી કરીશ કે થોડીક એનો પર પણ આપ પ્રકાશ ફેંકજો તો આટલા બધા લોકોને ફાયદો થાય કે તમે જે મહેનત કરી છે એ આપણને। अभी अभी थोड़े दिनों पहले इस विश्व के काफ़ी अच्छे एंटरप्रेनर, काफ़ी अच्छे विद्वान अगले 10 सालों में कहाँ पे जाएगा ये विश्व, तो उसके लिए थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो उसमें एक लाइन आई, आज का समय बहुत कम है तो मैं ज़रा 5 मिनट ही मुझे दिए गए, तो उसमें एक लाइन कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, अभी कहा कि नॉलेज इज़ इफेक्टिवली इज़ पावर, 100% राइट है, मगर उन्होंने एक नया सूत्र दिया कि नॉलेज इज़ वेल्थ। आने वाले समय में ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है कि जो आपकी सारी समस्याओं की समाधान करेगा। और आज के इस प्रसंग पर आप लोग देखना, इस बुक के उद्घाटन के बाद में लगभग 850 से 900 अपने ज्ञान भंडारों का संकलन। कितनी संपदा हमारे पास है, हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। करीबन करीबन हमारे पास जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ और ये साथ में ये ज्ञान भंडार जो वर्षों से ये सारी वेल्थ को एक से दूसरे के पास ट्रांसफर, दूसरे के तीसरे के पास ट्रांसफर, और इस टेक्नोलॉजी के युग में जो कार्य अभी हो रहा है उस कार्य की एक खाली इस बुक को खोल के इसके सारे लेखों को खाली झलक देखिएगा कि हमारी आने वाली समस्याओं के सारे समाधान इसमें हैं। और जिनको भी ज्ञान साधना करनी है उस ज्ञान साधना के लिए जो महात्मा जो स्वाध्याय करते हैं अपने साधु साध्वी भगवंत, उसके बाद में जो श्रावक गण है, उसके बाद में सारी पाठशाला है, ज्ञान भंडार है, उसी सिलसिले में एक आगे का आज की टेक्नोलॉजी के साथ में एक नया जो अध्याय जोड़ा है, उसमें 3 अध्याय है। एक तो स्कैनिंग का जो लिया है मुंबई जैन संघ संगठन ने, दूसरा अध्याय है एक जैन ई बुक्स करके एक एप्लीकेशन आई है जिसके बारे में मुझे अभी बताना है। एक ऐसा सपना था कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके घर पे कुछ अच्छी पुस्तकें हो, मगर अपने घर में ज्ञान भंडार हो, अपने पास एक ज्ञान भंडार हो, ये कल्पना बहुत मुश्किल थी। मगर लास्ट 5 से 10 सालों में टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने जो उन्नति की उससे ये पॉसिबल हो गया कि हम हर एक व्यक्ति के पास में एक ज्ञान भंडार हो सकता है। और उसमें 1 बुक नहीं, 2 बुक नहीं, 1000 बुक नहीं, लाख बुक नहीं, करोड़ों बुक से आ सकती है। और उसको जब भी हमारे पास समय हो, पूरे 24 घंटे में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जब भी समय हो उस समय पे हम लोग उसका सदुपयोग करके अपनी वांछन को हम लोग ले सके। तो आज के समय में हमारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है। और ये जैन ई बुक्स करके एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें अभी फिलहाल करीबन 21,000 पुस्तकें हैं और इस वर्ष के अंत तक करीबन 1 लाख पुस्तकें आ जाएगी। और साथ साथ में इसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ऑल ओवर विश्व के जितनी भी सारी अच्छी पुस्तकें हैं, विद्वानों की पुस्तकें, फिलोसॉफी की पुस्तकें हैं, वो सारी आएगी। इसमें करीबन करीबन अभी तक 330 से 40 विषयों तक का सारा संकलन किया गया है और एकदम फ्रेंडली यूजर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके अंदर बच्चों के लिए भी एक विशेष खंड है जिसके अंदर करीबन अभी तक 4,500 पुस्तकें हैं। और इसके अंदर पुस्तकें पढ़ने के बाद में आप अपने कमेंट्स किए हुए वो भी सारे मिलेंगे, दूसरे लोगों ने जो कमेंट्स किए वो आपको मिलेंगे। एक उसके अंदर फॉरम है कि जो भी यंगस्टर, जो भी रीडर फॉरम है कि जो भी पुस्तक पढ़ेगा वो अपने उसके जो भी मत है वो उसके ऊपर लिखेगा, तो आने वाले जो भी सभ्यों को ये पढ़ने के लिए ईजी होगा। जिसको भी डाउनलोड करके अपने फ्रेंड को शेयर करना है तो कोई भी पुस्तक को डाउनलोड कर सकता है। किसी भी महात्मा को, किसी भी ज्ञान साधक को कहीं पे भी कोई भी पुस्तक चाहिए तो वो बुक डाउनलोड करके प्रिंट करके उन तक ऑन द स्पॉट पहुंचा सकता है। तो ये एक जैनी लाइब्रेरी का है। अभी तक ये लास्ट ज्ञान पंचमी को इसका उद्घाटन हुआ था, 1 वर्ष होके अभी करीबन 13 या 14 महीने हुए हैं उसको। इसके अंदर करीबन 28,000 लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। एंड्रॉयड और अपना iOS दोनों के ऊपर है। और एवरीडे करीबन 250 से 350 बुक इसके अंदर ना डाउनलोड हो रही है। करीबन अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 5,000 के बीच में एवरेज एवरीडे पेज की रीडिंग हो रही है। कौन व्यक्ति कौन सा साहिब जी पेज पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है
और कौन से पेज के ऊपर उसने कितनी मिनट दी है और उसका इंटरेस्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारा कैप्चर किया जा रहा है। और ठीक 2 साल 5 साल के अंदर अंदर हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन जितने भी लेखक महात्मा है उनको देंगे कि आज की जनरेशन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है और उनका क्या विषय है। तो ऐसे कितने ही सारे पैरामीटर्स इस प्रोग्राम के अंदर, इस ऐप्स के अंदर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो आने वाली प्रजा को हम लोग कहाँ पे मोल्ड करें, कहाँ जाए, तो हर एक को एक रिक्वेस्ट है कि ये जैन ई बुक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आने वाले वारसे को, अपने घर में, अपने परिवार को, सभी को अपने मोबाइल के अंदर ये करें। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी का भी जो फ़ायदा है, जो उसके फ़ायदे हैं, वो हमें लेने ज़रूरी है। एक ये जैन ई बुक्स जो एप्लीकेशन के अंदर है, मैंने उसका थोड़ा सा ही 5-10% ही आपको मैं बताया है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो आपके आने वाले जीवन को एकदम सुसंस्कारित करेगी। और आने वाले जीवन में आपकी जो यात्रा है मोक्ष की तरफ, उसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व बोध की बात है। उसके बिना वेद ज्ञान नहीं हो सकता, वेद ज्ञान के बिना आपका ग्रंथि भेद नहीं हो सकता, तब तक आप अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते और आपका मोक्ष मार्ग चालू नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग के लिए जो स्टार्टिंग का पक्ष है ज्ञान वाला, वो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे आपको हम कंपाइलेशन करके देगा और आपके जो इंटरेस्ट के विषय में आप सबको लाएगा। तो आप इसके विषय में सबको जानकारी दीजिएगा। सेकंड विषय था मुझे बताना कि शुद्ध ज्ञान एक और आयाम चालू किया है बच्चों के लिए कि हम लोग ए फॉर एप्पल अगर ढूंढना है और हम लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं गुरुदेव, तो करीबन 15 करोड़ के आसपास का सर्च मिलता है हमको, इतनी सारी पुस्तकें मिलती है। मगर ए फॉर अरिहंत के नाम से हमको ढूंढना है या फिर अ फॉर अरिहंत के नाम से सुनना है तो हार्डली 5-10 पुस्तकें मिलती है। बहुत सारे प्रयत्न अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग महात्माएं, अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं। उन सारों को, जैसे कि मनोभूषण महाराज साहब है, रत्नत्रयम है, और भी कितने ही सारे नाम हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के लाके उनके कौन कौन सी पुस्तकें जो बच्चों के जीवन को और पाठशाला के जीवन को एक बहुत ही नया आयाम दे सके और उनके अंदर एक गति प्रदान कर सके, वो सारा का सारा इस है ना शुद्ध ज्ञान के ऊपर किया है कि उनको जब भी चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, वो पुस्तक उनको अवेलेबल फिजिकल फॉर्म में करवाएगी। साथ में श्रुत ज्ञान ने, मल्टीग्राफिक्स ने करीबन ये लास्ट 7 महीनों में लॉकडाउन में 350 सब्जेक्ट पे बच्चों के अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए गए। वो फ्लैश गेम्स हो, कॉमिक्स हो, तो ये सारी चीज़ें उनमें संस्कार डेवलप करें। और आज का जो एजुकेशन जिस वे पे चल रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को नवीनतम टेक्नोलॉजी वाइज वो सारी चीज़ों को हमने उसके अंदर किया गया है। ये दूसरा आयाम। और तीसरा आयाम था स्कैनिंग का। ये सारी चीज़ें हैं, मगर एक बहुत बड़ा सवाल था संदीप भाई का कि सारी चीज़ें होके बाद में क्या, इफेक्टिवली क्या। क्योंकि आज से ठीक 5 साल पहले जो 100 कंप्यूटर काम कर सकते थे, जो उसके अंदर जो पावर था, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना हो गया वो भी हमें पता होना चाहिए। आज से 5 साल पहले जो 100 कंप्यूटर काम करता था, आज एक खाली आपका स्मार्टफोन काम कर रहा है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, हम लोग यहाँ पे बैठ के जब सपोज के 100-200 लोग जो भी सोच रहे हैं, उतना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करोड़ गुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्क करके हमारे माइंड में हमको कैसे डेवलप करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, क्या करना है, वो सारा हमको कंट्रोल्ड कर रहा है। अगर हम प्रॉपरली इसका यूज नहीं करेंगे और अपने घर में सबसे पहला प्रायोरिटी ज्ञान की साधना को लेके नहीं करेंगे, तो हमको उनके हिसाब से जीना पड़ेगा जो हम लोग जी रहे। आज हम हमारा IQ लेवल जो यूज़ करना वो नहीं कर पा रहे। जो मीडिया, जो टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल, जो देश के नेता, जो भी वातावरण बन रहा है, हम उसी के हिसाब से सोच रहे, उसी के हिसाब से चल रहे, उसी के हिसाब से एक्ट हो रहे। तो वो इतना हावी हो रहा है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। तो हमें आज बहुत ज़रूरी है कि ये ज्ञान का संवर्धन तो हम लास्ट 30 या 40 सालों से मैं भी देख रहा हूँ। मैं करीबन 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि करोड़ों रुपए का संवर्धन गुरु भगवंतों ने, श्रावकों ने, संघों ने बहुत अच्छा किया है। साथ साथ में श्रुत को पढ़ने का भी किया है। मगर अभी इफेक्टिवली, जिस तरह से अतुल भाई ने कहा कि इस नॉलेज को इफेक्टिवली अपने अंदर यूज़ करना है, तो छोटा हो कि बड़ा हो, ज्ञान छोटे से लेने के लिए नहीं, हर उम्र के लिए है। तो हमें सबसे पहले अपने संघों में पाठशाला, ज्ञान के नए मॉडल्स, टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से ये लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं या हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन में जो भी बाह्य ऑफलाइन और ऑफलाइन सबका समन्वय करके हमको दिन का करीबन 5 मिनट से आधे घंटे से घंटे तक अगर हम लोग इसमें नहीं देंगे, तो भविष्य हमारा बहुत बहुत खूबसूरत नहीं है।
ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर सारी समस्याओं का समाधान है। थैंक यू, आप सभी ने सुना और मेरे से कुछ भी कहा गया तो मैं क्षमा करता हूं।